Hello everyone, dear students. Today I am here with a very interesting, a very humorous story of our Beehive text, that is chapter 5, The Snake and the Mirror. This story is narrated, it's written by a person named Baiko Mohabbat Bashir, and actually this story is a narration in the narration. It means a story which is narrated to the person is narrated by someone else. And this story revolves around a snake and the mirror. And the main character of this story is a homeopath doctor. Now, first, let us have a review over before you read. Do you like to look at yourself in the mirror? I think everyone, each and every person likes to look in the mirror. A person has a habit, a human being has, it's a human nature that every person tries to find out something appreciative in itself. What do you think about at such times? Means whenever we see in our mirror what we think of ourselves, we try to find out a beauty point of our face, isn't? Have you ever seen a dog, a cat, or a bird look into a mirror? I think most of you would have seen most of the animals like monkeys, cats, any bird looking into the mirror. What they observe, they think that there is someone else, isn't? What do you think it sees? मतलब वो जब मिरर में देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? So according to me, I think they are looking that who is the other one just like me in the mirror, isn't? Now let us read this humorous story about a doctor, a snake, and a mirror. So the main character here is a doctor, and the snake, the third is the mirror. Now in this story is really a very humorous and a hilarious story, and it also gives a message which we will see at the end of the story. But before that, let us start. In this story, the doctor, a homeopath doctor, who thinks himself quite, he was full of attitude and little bit we could say a mad type person. And at the end, he comes to know that how poor, how mad, and having no sense at all. This thing we are going to see at the end of the chapter. Now, here we will see in the first paragraph, the doctor in his class is narrating one of the incident to his students, and among those students one of the person is the one who is narrating this incident narrated by the doctor to his class, in his class. ओके यानी ये जो स्टोरी जो नरेट कर रहा है वो जो डॉक्टर है वो ये स्टोरी अपने ही क्लास में जहाँ वो पढ़ा रहा है उस क्लास में अपने स्टूडेंट्स को सुनाता है एक इंसिडेंट जो उसके साथ ऑकर्ड हुआ. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैड हैपेंड विथ हिम. हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? अ फुल blooded cobra. Now here the doctor, homeopath, he is in his class with the students around him and he says कि क्या कभी कोई स्नेक तुम्हारी बॉडी के किसी भी पार्ट पर कॉइल्ड का मतलब अपने आप को लपेटना, ठीक है, कुंडली बनाना. अ फुल ब्लडेड कोबरा. फुल ब्लडेड कोबरा मतलब बहुत ही पावरफुल. तो वो कहता है कि क्या आप में से किसी ने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके किसी भी बॉडी के पार्ट पर कोई इस तरह से बड़ा पावरफुल कोबरा आया हो या अपने आप को उसने लपेटा हो. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. नाउ हियर ऑल ऑफ अस, द नरेटर विथ अलॉन्ग मोर ऑफ हिज क्लासमेट्स, ही सेज दैट आफ्टर लिसनिंग टू दिस सेंटेंस वी फेल साइलेंट. हम सब चुप हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. Homeopath means the person studying or a doctor of homeopathic. तो ये क्वेश्चन कौन पूछता है? होम्योपैथ डॉक्टर. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. तो ये टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ? जब वो स्नेक्स के बारे में ही क्लास में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. टेल मीन्स स्टोरी. सारे
सभी वहाँ पर चुपचाप उसकी कहानी को, उसकी उस इंसिडेंट को ध्यान से सुनते हैं, that what had happened with this doctor. Further proceeding with this story, the doctor says, it was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. Now, as we generally, when we imagine of a doctor, what we think कि एक डॉक्टर अगर होता है तो वो वेल सेटल्ड होता है, अच्छा घर होता है, वेल फर्निश्ड हाउस होता है उसका. बट हियर दिस डॉक्टर इज़ नॉट ऑफ दैट काइंड. ओके, सो ही लिव्स इन अ हाउस, रेंट के हाउस में वो रहता है, जहाँ कोई ज़्यादा कुछ फर्नीचर नहीं होता है, ज़्यादा वेल फर्निश्ड नहीं होता है, जहाँ बहुत सारे चूहे होते हैं. इज सच काइंड ऑफ हाउस ही इज़ टू लिव. सो इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. गर्मी के दिन थे, रात थी, लगभग रात की 10 बजी थी. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. So he took his meal at the restaurant and returned to his room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So when he opened the door, he heard a noise. Now that noise, that sound was a familiar one. Familiar का मतलब known, यानी वो sound जो वो अक्सर सुनता है. और what sound it was? One could say that the rats and I shared the room. It means उसके रूम में इतने चूहे थे कि वो जैसे कि चूहों के साथ अपना रूम शेयर करता हो. So many rats were there. So what he did, he took out the matchbox and lighted the kerosene lamp on the table as the house was not electrified. यानी कि उस घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, तो वो केरोसिन लैम्प जलाता था शाम को. It was a small rented room. As I've told you, he used to live in a rental house. I had just set up my medical practice and my earnings were meager. मतलब अभी अभी रिसेंटली उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस ख़त्म की थी, और इस वजह से उसकी जो सैलरी थी, अभी शुरुआत थी तो बहुत कम थी, और इतनी भी नहीं थी कि वो सारा कुछ अपने लिए सारी फैसिलिटीज़ घर में कर सके. सो ही सेज माई अर्निंग्स वर meager. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस. तो उसके पास अगर हम कहें तो सिर्फ एक 60 रुपीज़ की अमाउंट थी. और इन माई सूट केस along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो 60 रुपीज़ के अलावा उसके पास कुछ शर्ट्स और कुछ धोतीस थी. उस एंड ही पोजेस्ड यानी उसके पास सिर्फ एक, इनके अलावा एक ब्लैक कोट था. सॉलिटरी यानी सिंगल, ओनली वन ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो उसने तब पहन रखा था. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. So first he removed his black coat, white shirt and not so white यानी जो पीला पड़ चुका था, वेस्ट यानी इनर शर्ट जिसको हम बनियान कहते हैं. ओके, तो वो उसने अंदर जो पहन रखा था वो भी डल हो चुका था, ज़्यादा वाइट नहीं था. तो उसने अपना वाइट शर्ट खोल के, अपना ब्लैक कोट खोल के, और इवन दैट वेस्ट, एंड ही हंग देम अप यानी उसने उसको वहाँ पर टांग दिया. आई ओपन द 2 windows in the room. So he opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. इट मीन्स वो जिस रूम में रहता था उसकी 2 विंडोज़ थी, और इट वॉज एन आउटर रूम यानी घर के बाहर एक और रूम होता है जिसके आगे खुला सा यार्ड होता है. ठीक है. एंड इट हैड अ टाइल्ड रूफ यानी छत जो थी उसकी वो टाइल्स वाली थी. सपोर्टिंग गैबल्स मतलब यू कुड सी हियर अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ. यू कुड सी हियर इन द picture here, it is called as gable.
इसका मतलब वहाँ पर कोई सीलिंग नहीं थी, छत नहीं थी. Only this kind of slope was there and just a room. There was a regular traffic of rats to and fro from the beam. यानी उसके घर में, उस रूम में कंटिन्यूस रैट्स घूमते रहते थे रात को. I made my bed and pulled it too close to the wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. तो उसने अपनी बेडिंग की, बिस्तर लगाया दीवार को लगाकर, और वहाँ पर कुछ देर तक लेटा, लेकिन उसको नींद नहीं आई. सो वॉट ही डिड, ही गॉट अप, वो वहाँ से उठता है और कुछ देर के लिए वेरांडा यानी ओपन में बाहर जाता है ताकि थोड़ी कुछ हवा आ सके. बहुत गर्मी थी. बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ. टेकन टाइम ऑफ मतलब ऐसे लग रहा था कि जो हवा है वो भी शायद छुट्टी पे गई है, यानी कि इतनी गर्मी थी कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी. आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन दी चेयर. फिर से वो रूम के अंदर जाता है और चेयर पर बैठ जाता है. आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक द मटेरिया मेडिका. तो उसने एक बॉक्स खोला जो टेबल के नीचे था और उसमें से एक बुक निकाली, मटेरिया मेडिका नाम की. आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. अ स्मॉल कोम्ब ले बिसाइड द मिरर. अब उसने वो बुक खोली और टेबल पे रखी. ठीक है. उस टेबल के ऊपर क्या था, एक लैम्प, एक बड़ा सा मिरर था, और वहीं इस टेबल के साइड में एक छोटा सा कंघा पड़ा था, कोम्ब. ओके, मिरर के पास. वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. इट मीन्स अगर हमारे सामने आईना हो, मिरर हो, ठीक है, तो कोई भी अपने आप को उसमें देखने से नहीं रोक सकता है. हु एवर इट इज़. ओके, चाहे कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग, कोई भी पर्सन हो, एक बार वो उस मिरर में देखेगा ही. वैन इट इज़ नियर वन, अगर वो आपके पास हो. आई टुक अ लुक. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. तो उसने एक झलक देखी, अपने आप को उस मिरर में देखा. उन दिनों I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मतलब उसकी ये थिंकिंग की कि वो ब्यूटी को एडमायर करता था और उसका ये मानना था कि मुझे हमेशा हैंडसम रहना चाहिए, दिखना चाहिए. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. क्यों? एक तो वो बैचलर था, अनमैरिड था, और दूसरा डॉक्टर. तो ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर एंड एज एन बैचलर अ पर्सन मस्ट मेंटेन इट्स सेल्फ looking handsome. So same thing here it was. I felt I had to make my presence felt. मतलब मैं अपने आप को इतना स्मार्ट, इतना एडमायरेबल बनाऊँ कि लोग मुझे देखकर अट्रैक्ट हो, मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें. और मेरी प्रेजेंस, अगर मैं लोगों के बीच में जाके खड़ा हूँ तो मेरी प्रेजेंस लोगों को फील होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि कोई हैंडसम पर्सन, एक डॉक्टर खड़ा है. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो उसने वो कंघा उठाया, अपने बाल बनाए, और पार्टिंग का मतलब बालों को बनाना, वो उसने किया. बिल्कुल स्ट्रेट और नीट उसने अपने बालों को कोम किया. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. जो साउंड उसने फर्स्ट में सुनी वही आवाज़ उसको वापस कुछ सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल वही साउंड. आई टुक अ लुक एट माई फेस इन द मिरर. वो उस आवाज़ को अवॉइड करता है, इग्नोर करता है. देन आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. पास में जाकर उस मिरर में वो अपने आप को देखता है. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन स्टैच टू लुक मोर हैंडसम. I was after all a bachelor and a doctor. अपने आप को मिरर में देखने के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है, एक फ़ैसला करता है
दैट आई वुड शेव डेली, मैं रोज़ शेव करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, मुस्टैच यानी मूछें, ठीक है। तो वो डिसाइड कर लेता है कि एक तो मैं रोज़ शेव करूँगा और एक थिन मुस्टैच रखूँगा ताकि मैं और हैंडसम दिखूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल ही वॉज अ बैचलर एंड अ doctor, as I have already told you. I looked into the mirror and smiled. Now, after taking the decision, he again looked into the mirror and smiled himself. It was an attractive smile. Now, he is appreciating himself. He is admiring himself. अपने आप को ही देखकर वो खुश हो रहा है और उसका ये मानना है कि मेरी स्माइल काफ़ी attractive है. Then again he made another decision. Now this was the first decision he made. Just remember that he would shave daily, grow thin mustache to look more handsome. Now another earth-shaking decision he takes. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was after all a bachelor and a doctor too on top of it. तो दूसरा डिसीजन वो क्या लेता है अर्थ शेकिंग कि हमेशा मेरे चेहरे पे मैं एक एट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, फिर से वही आवाज़ उसको सुनाई देती है. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. आई गॉट अप, पेस्ड अप, तो वो वहाँ से खड़ा होता है एंड वॉट ही डिड, ही पेस्ड अप फ्रॉम देयर. पेस्ड मीन्स टू मूव फ्रॉम देयर. ओके, down the room, and down the room he went with a speed. Then another lovely thought struck me. फिर उसके दिमाग में एक और विचार आता है, एक और बात आती है. I would marry. Now here he decides to get married. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. So here he takes another third decision that he would marry to a lady, to a woman who is a doctor. Okay, having plenty of money, बहुत सारा पैसा हो उसके पास और good medical practice, अच्छी डॉक्टर हो. दूसरी बात कि वो she had to be fat, वो फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए. उसके लिए एक रीज़न है, वैलिड रीज़न. वो ये कि अगर इफ़ यू मेक एनी सिली मिस्टेक, अगर वो कोई छोटी मिस्टेक भी करता है तो वो वहाँ से भाग जाए और वो उसको फॉलो ना कर सके, उसकी वाइफ उसको उसके पीछे भागकर उसको पकड़ ना सके, टू पनिश हिम. ना हियर इट इज़ अ ह्यूमरस काइंड ऑफ सेंटेंस हियर कि वो एक ऐसी लेडी से शादी करना चाहता है जो मोटी हो, और अगर वो कोई गलती करे तो वो उसके पीछे उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए भाग नहीं सके, उसका पीछा नहीं कर सके. विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. अब ऐसे ऐसे उसके माइंड में थॉट्स आ रहे थे और फिर अगेन ही टुक हिज सीट, रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. फिर से उस सीट पर जाकर वो बैठ जाता है. देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, यानी जो साउंड उसने 2-3 बार सुना वो साउंड उसको सुनाई नहीं देता है. सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneous. So, he heard a dull thud. डल थर्ड का मतलब किसी के जोर से गिरने की, किसी हैवी चीज़ के गिरने की हैवी आवाज़. भारी धम से कोई गिरता है तो धम से गिरने की जो आवाज़ होती है वो उसको सुनाई दी, जो ज़्यादा लाउड नहीं थी, धीरे से थी. और उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रबड़ का ट्यूब हैड फॉलन टू द
ground. Surely nothing to worry about. Surely nothing to worry about यानी उसने ये सोचा कि ज़्यादा कुछ वरी करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है. Even so I thought I would turn around and take a look. लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं मुड़ के एक बार देखूँ तो सही आखिर है क्या, क्या गिरा, किसकी आवाज़ है. No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. तो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसने क्या देखा? A fat snake wriggled over the back of the chair. Wriggled means रेंगना, crept. ओके, तो कुर्सी के पीछे वो स्नेक रेंगता हुआ लैंडेड ऑन माई शोल्डर, उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस मीन्स एट द सेम टाइम, यानी उस स्नेक का उसके कंधे पर आकर बैठना और इस नैरेटर का, इस डॉक्टर का पीछे मुड़कर देखना, दोनों एक साथ. You could imagine the hood of that snake on his shoulder and the face of this person, of this doctor looking at that snake, both at the same time. दोनों का एक साथ ये हुआ. ठीक है. So what happened next? So this thing we are going to see further. So as you have seen, this remaining part 7, 8, 9, just I have shown you. This thing we are going to see in our next video. Okay, just we have seen the 12 points are there. So remaining part we are going to read in our next video, that what had happened, how this person doctor, this homeopathy doctor survived and saved himself or not saved himself from this snake. Okay, thank you.